गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आप सब के लिए डेली एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Question first, 3 consecutive vertices of parallelogram are -2, -1, 1, 0 and 4, 3. Find the coordinate of the fourth vertex. First of all, we try to understand what says question. 3 consecutive vertices of a parallelogram. We construct parallelogram A, B, C and D. 3 consecutive vertices of a parallelogram, -2, -1, 1, 0 and 4, 3. Find the fourth vertex of the parallelogram. So we let the fourth vertex x, y. x1, y1 कर देता हूँ। Join A to C and B to D. We know that the diagonal of a parallelogram bisect to each other. It means that O is the midpoint of AC. So we apply midpoint formula. Coordinate of O is x1, y1, x2, y2. x1 plus x2 by 2, -2 plus 4 upon 2, comma y1 plus y2 by 2, -2 और plus 3 upon 2. Coordinates of O is 2 upon 2 is 1 and 1 upon 2. Again we find the coordinates of O using B and D coordinate. O is also the midpoint of BD. तो again we apply midpoint formula. x1 y1, या ये तो x1 y1 लिखा हुआ है तो इसी को लेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला मिड पॉइंट x1
प्लस x2 x1 प्लस 1/2 और कामा y1 प्लस y2 y1 प्लस 0/2. This is the coordinate of O and this is also the coordinate of O. So comparing the coordinates, the first coordinate 1 is equal to x plus 1/2. 1 is equal to x plus 1/2. So x plus 1 is equal to 2, x is equal to 1, x1. इसको x1 कर देते हैं, x1 गिवन था. वन बाई टू इज इक्वल टू y1/2. 1/2 is equal to y1/2. 2 cancel on both side. y1 is equal to 1. Coordinates of D is x1 1 or comma y1 is 1. This is the solution of this equation, this question. Next problem, the line segment joining the points 3, -4 and 1, 2 is trisected at the points P, small p, -2 and capital Q, 5/3, small q. Find the value of P and Q. The value of P and Q. फिगर बना लें, फिगर से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा. Suppose A point 3, -4 and B point 1, 2. AB line segment is trisected. Point P is P, -2 and Q point 5/3, Q. For P point रेशियो ये 1 और ये 2 पार्ट, तो रेशियो होगा 1:2. M is equal to 1 and N is equal to 2. ये आपका XY बनेगा, ये x और ये y हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. x इज स्मॉल p इज इक्वल टू m1, x2 इज ये आपका x1 y1 x2 y2. x2 is 1 और प्लस n is 2, x1
is 3 और अपान 1 + 2, तो P is equal to 1 + 6 upon 3 is equal to 7 upon 3. This is the value of P. For Q point, रेशियो ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, तो 2:1. M is equal to 2, N is equal to 1. For find Q, we apply y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. तो y ये आपका x, ये y होगा, तो y इज इक्वल टू q हो जाएगा. m इज़ 2 एंड y2 इज़ 2 प्लस n इज़ 1 एंड y1 इज़ -4 और अपान 2 + 1. तो q इज़ इक्वल टू 4 -4 और अपान 3 इज़ इक्वल टू 0. तो वैल्यू ऑफ Q इज़ इक्वल टू 0 एंड P इज़ इक्वल टू 7/3. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Next question, find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B is -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 1, -5 and B point coordinate -4, 5. X-axis, this line segment is divided by x-axis. ये x-axis इसको डिवाइड कर रहा है. Suppose this is a x-axis. To point on the x-axis, x, 0. Point on the x-axis. रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है, तो रेशियो को हम लेट कर लेते हैं कि रेशियो 1. आप किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो आप की रेशियो 1 लेट करेंगे सभी क्वेश्चन में. तो दिस इज़ m, दिस इज़ n एंड x1, y1
x2 y2 और ये आपका x और y होगा। अब आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, x का फार्मूला या y का फार्मूला? तो आप यहाँ पे देखिए कि y की वैल्यू 0 लिखा हुआ है, यानी कि y की वैल्यू 0 है, तो y का फार्मूला आप अप्लाई करें। तो सेक्शन फार्मूला y इज़ इक्वल टू my2 प्लस ny1 और अपान m प्लस n। y वैल्यू इज़ 0 इज़ इक्वल टू m is k and y2 is 5, n is 1 and y1 is -5 और अपान k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज़ इक्वल टू 5k माइनस 5k इज़ इक्वल टू 5, k इज़ इक्वल टू 1। तो इस k को मैं लिख सकता हूँ k अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। तो रेशियो क्या आ गया 1:1, क्योंकि ये k रेशियो 1 लिखा हुआ है, तो k रेशियो 1 की वैल्यू आ गया 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि दिस पॉइंट इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और इसी में फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा था आपसे कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, मतलब ये पॉइंट भी, ये कोऑर्डिनेट्स भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये मुझे पता चल गया कि 1:1 है, इट मीन्स दैट कि दिस पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 1 -4 और अपान 2, तो x इज़ इक्वल टू -3 अपान 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज़ -3/2, 0। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप डिवीज़न ऑफ वाई एक्सिस होगा तो वो भी आप कर लेंगे। वाई एक्सिस पे पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0, y लेट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द रेशियो in which the point P -6, A divides the join of A -3, -1 and B -8, 9 also find the value of A, find the value of small a। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को अगर समझ के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, -3, -1 एंड बी कोऑर्डिनेट -8, 9। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट -6, A। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो, तो के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो आप सभी क्वेश्चन में के रेशियो 1 लेट करेंगे। तो ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, ये आपका x और ये y, x1 y1, ये x2 y2। अप्लाई
एक्स फार्मूला, यहाँ पे वाई फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, एक्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रेशियो मुझे पता चल जाएगा, और जब रेशियो पता चल जाएगा तो फिर वाई फार्मूले से एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अप्लाई एक्स फार्मूला मीन्स सेक्शन फार्मूला, मैंने सेक्शन फार्मूला में एक्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो m x2 प्लस n x1 और अपान m प्लस n, m इज़ k और x2 इज़ -8 प्लस n इज़ 1, x1 इज़ -3 और अपान k प्लस 1 और दिस इज़ -6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई -6k -6 इज इक्वल टू -8k और -3, -6k प्लस 8k इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो 2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/2। तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो रेशियो आ गया 3:2। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड आंसर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए वैल्यू के लिए आप वाई फार्मूला अप्लाई करें, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 और अपान m प्लस n। तो y की वैल्यू क्या लिखा है, y a लिखा हुआ है, m इज़, अब रेशियो आपको पता चल गया, ये आपका m और ये n, तो m इज़ 3 और y2 इज़ 9 और प्लस n इज़ 2 एंड y1 इज़ -1 और अपान 3 प्लस 2। तो a इज़ इक्वल टू 9 3 या 27 और -2 अपान 5, तो इज़ इक्वल टू 25/5, तो a इज़ इक्वल टू 5। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। Next question, determine the ratio in which the line टू एक्स प्लस वाई -4 equal to 0 divides the line segment joining the points A is 2, -2 and B 3, 7. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझ लिया जाए। डिटरमाइन द रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस लाइन divide the line segment joining the points. Suppose this is a line segment A and A point is 2, -2, B coordinate 3, 7 और ये कोई लाइन है, इसको डिवाइड करता है। इसका इक्वेशन लिखा है 2x + y -4 = 0। अब ये मुझे नहीं पता है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। तो ये आपका m, ये आपका n, दिस इज x1 y1 x2 y2। अब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें, तो अगर मैं x
इसको लेट कर लिया एक्स वाई, या कोई दूसरा पॉइंट लेट कर लेते हैं, ए और बी लेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपान एम प्लस एन। फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। x इज a, a इज इक्वल टू m की वैल्यू k और इंटू x2 इज 3 और प्लस n 1 और x1 इज 2 और अपान k प्लस 1। तो a इज इक्वल टू 3k और प्लस 2 अपान k प्लस 1। ठीक है, अब हम b फाइंड आउट करें। b मीन्स y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन और अपान m प्लस n। m इज k एंड y2 इज 7 प्लस 1 इंटू y1 इज -2 और अपान k प्लस 1। तो 7k -2 अपान k प्लस 1 और y इज b। ये आपका x और ये y होता है, तो ये आपका b लिखा हुआ है। तो पॉइंट यानी दिस पॉइंट, इसको p लेट कर लें, तो पॉइंट p लाई ऑन द लाइन, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x क्या होगा, a हो जाएगा और y b होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 और x की वैल्यू a और a की वैल्यू लिखा है 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1, 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 और प्लस y मीन्स b। तो 7k -2 अपान k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग एलसीएम k प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 6k प्लस 4 और प्लस 7k माइनस 2 एंड -4 मल्टीप्लाई इन दिस ब्रैकेट k प्लस 1, तो -4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 13 और 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9k और 4 और -2 बचेगा, तो +2 और ये -4 तो -2 और अपान ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो गया। तो 9k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2 अपान 9। तो रेशियो हो गया, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2 रेशियो 9। तो ये आपका रेशियो फाइंड आउट हो गया और यही फाइंड आउट करना था। एक फार्मूला और आपको बताया था कि सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, तो उसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। और ये 5 लेक्चर हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5 लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपका पूरा सिलेबस 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर आपका बनेगा 5th लेक्चर। तो फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ triangle ABC whose vertices are A -1, 0, B 5, 2 and C 8, 2। सेंट्रॉयड फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉयड होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें कि व्हाट इज़ द सेंट्रॉयड। सपोज दिस इज़ अ ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल है
और दिस इज़ द मीडियन, ये आपका मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट, ये आपका मीडियन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, ये आपका जी पॉइंट है, सेंट्रॉयड। और सेंट्रॉयड फाइंड करने का फार्मूला, अगर इसका हम एक्स वाई लेट कर लें तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपान 3, और कामा y इज इक्वल टू होता है y2 प्लस y3 और अपान 3। तो कोऑर्डिनेट्स, ए कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा है -1, 0, बी कोऑर्डिनेट्स 5, 2 एंड सी कोऑर्डिनेट 8, 2। तो आपका ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, फार्मूले में आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू x1 इज़ -1 और +5 + 8 और अपान 3। तो इज इक्वल टू 8, 5, 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 12, और 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 4। और y इज इक्वल टू y1 इज़ 0 प्लस y2 इज़ 2 और प्लस y3 इज़ 2 और अपान 3, तो 4 अपान 3, दिस इज़ द y। तो z कोऑर्डिनेट आ गया 4, 4/3, दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से आपका ये सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।